Morning students, welcome to e-learning classes. Students, in today's lecture we are going to do book exercise of chapter number 6 community eating for class 4th subject EVS. So let us start exercise from first part of this exercise, write true or false. Here students, there are 4-5 sentences. You have to listen these sentences and also give the answer in the given space. Is these are right statement or wrong statement. If the statement is correct, then you have to write down T. If the statement is incorrect, means false, you have to write down F in front of it. So let us start. लंगर इज सर्व्ड इन अ चर्च. बेटा जो लंगर है वो चर्च में सर्व होता है. इज इट करेक्ट? नो, लंगर इज सर्व्ड इन गुरुद्वारा. So this statement is false. So you have to write down here false. In a bandara, food is served on plates made of dried leaves called पत्तल्स. भंडारा में क्या होता है? टेम्पल्स में भंडारा सर्व होता है और वहाँ पे क्या होता है? इन अ भंडारा जो फूड है वो सर्व किया जाता है प्लेट्स में, और वो प्लेट्स को क्या बोलते हैं हम? पत्तल्स. विच आर मेड फ्रॉम ड्राइड प्लांट्स, ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट्स. जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे प्लेट्स बनाई जाती हैं. उन प्लेट्स को बोलते हैं पत्तल, और उन पत्तल्स में फूड सर्व किया जाता है इन भंडारास. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. You will write down here true. Now come to the next. Next statement is people all over India eat the same kind of food. बेटा जो पूरे इंडिया में लोग सेम टाइप का फूड खाते हैं. Is it right or wrong? People all over India eat the same kind of food. So this statement is again false. The people all over India have different food habits. The people in different parts of India eat that food that is locally available. इंडिया जो है, दिस इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है. यहाँ पे लोग वही फूड खाते हैं जो लोकली वहाँ पे अवेलेबल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ कम टू द फोर्थ वन. स्वीट ऑफ तिल्स आर मेड ऑन मकर संक्रांति. येस, दिस इज ट्रू. During the Makar Sankranti in Maharashtra, one sweet dish is prepared that is made of तिल. जो तिल से बनी स्वीट डिश होती है वो मकर संक्रांति में बनाई जाती है महाराष्ट्र में. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिलअप्स. वी आर गोइंग टू डू फिलअप्स. डैश इज अ स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड इन नॉर्थ इंडिया ऑन होली. बेटा होली में नॉर्थ इंडिया में कौन सी डिश प्रिपेयर होती है? दैट इज गुजिया. GUJIA, गुजिया. नंबर 2, सेमिया इज अ स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय डैश ऑन ईद. सेमिया एक स्पेशल डिश है जो मुस्लिम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑन देयर स्पेशल फेस्टिवल दैट इज ईद. MUSLIMS, Muslims. Number 3, in a dash, children eat together in a common dining hall. बेटा चिल्ड्रन जो हैं वो एक कॉमन डाइनिंग हॉल में मिलके खाना खाते हैं. कहाँ पे खाते हैं? इन अ हॉस्टल्स. HOSTELS, hostels. Hostels are that schools where the children live and study at the same place. Number 4, in some trains food is served to passengers from the dash. बेटा कुछ ट्रेन्स में जो फूड होता है वो पैसेंजर को सर्व किया जाता है. कहाँ से? उनकी सीट पे सर्व किया जाता है. और वो कौन सी जगह से सर्व होता है? फ्रॉम पेंट्री. PAN, पेन, TRY, ट्री, पेंट्री. नंबर 5, डैश आर फ्री मील्स सर्व्ड इन टेम्पल्स. टेम्पल्स में कौन सा मील सर्व किया जाता है? फ्री मील सर्व किया जाता है. दैट इज भंडारा. BHAN, DARAS, भंडारास. सो दीज आर फिलअप्स. वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज. डैश इज स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड इन नॉर्थ इंडिया ऑन होली, गुजिया.
Sevia is special dish prepared by dash on Eid, Muslims. In a dash, children eat together in a common dining hall, hostels. In some trains, food is served to passengers from dash, pantry. Dash are free meals served in temples, bandaras. Now students, you can take a screenshot of Phillips. Now the next part is question answers. We are going to do question answers. Students, you have to do this book work on your books, and question answer you will note down on your notebooks with neat and clean handwriting. There are 4 questions which we are going to do now. Firstly, you will write down the name of chapter on your notebooks. Chapter number 6. The name of chapter is Community Eating. Then question answers with neat and clean handwriting. And students, your first question is डिफाइन कम्युनिटी ईटिंग. बेटा कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, I make you understand what is the meaning of community eating and what is the meaning of community meal and what is difference between these two. So now we are going to do answer. When a large number of people eat together on specific occasions, it is called community eating. बेटा जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी खास अवसर पे, इसको बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग. एंड द पीपल हु ईट इन द इन्वाइटेड इन द कम्युनिटी ईटिंग, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो लोग कम्युनिटी ईटिंग में जिनको इनवाइटेड किया जाता है, इनवाइटेड होते हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग. The answer is very simple. When large number of people eat together on specific occasions, it is called community eating. So this is answer of your first question. Now come to the second question. Write the benefits of community eating. अब बेटा community eating के benefits क्या होते हैं? It has lots of benefits, but we are going to write only 2. First is it teaches us equality. ये हमें equality means बराबरता, सभी को एक समान समझना, बराबरता सभी को देना, equal समझना, ये हमें सिखाता है. Community eating जो है ये हमें equality सिखाती है. It teaches us equality. EQUALITY, equality. It teaches us equality. Number 2, it makes us feel a part of the community. साथ ही ये हमें कम्युनिटी का एक ऐसा फील करवाती है कि हम इस कम्युनिटी के पार्ट हैं जहाँ पे भी हम खाना खाते हैं. It makes us feel a part of the community. कम्युनिटी इज़ अ सोसाइटी वेयर वी लिव. जिस एरिए में, जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ पे हमें उस एरिए के हमें एज अ मेंबर फील करवाती है कि उसी के हम एक पार्ट हैं. सो दीज आर 2 बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी ईटिंग. फर्स्ट वन इज़ इट टीचेस अस इक्वालिटी. सेकेंड, इट मेक्स अस फील अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील. बेटा आपने मिड डे मील की 2 एडवांटेजेस बतानी है. राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील्स. मिड डे मील मीन्स द मील दैट इज सर्व्ड एट द मिडल ऑफ द डे इन अ गवर्नमेंट स्कूल्स. जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें मिडल ऑफ द डे जो मील सर्व किया जाता है, लंच सर्व किया जाता है, उसको मिड डे मील बोलते हैं. इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इनके, क्या फ़ायदे हैं इसके. नंबर 1, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड टू द चिल्ड्रन. सबसे पहले इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रन. बेटा ये चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस फूड, जो हेल्दी फूड होता है जिसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, सभी
प्रॉपर फूड होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा फूड होता है, वो न्यूट्रिशियस फूड ये प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस आंसर इज इट अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल टू स्टडी। साथ ही में बेटा ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो स्कूल में आएँ और स्टडी करें। इट अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल टू स्टडी। जो बच्चे पुअर होते हैं, जिनको घर में न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, उनको ये अट्रैक्ट करता है मिड डे मील कि वो स्कूल में आए, अच्छा अच्छा खाना खाएं और साथ में स्टडी करें। So these are two benefits of, two advantages of midday meal. First, it provides nutritious food to children. Second is it attracts children to come to school to study. Now come to fourth question. Define community meal. बेटा community meal क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था community eating. कम्युनिटी ईटिंग वो था जब स्पेसिफिक ओकेज़न पे लोग मिलके खाना खाते हैं, उसको कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं। अब हमने कम्युनिटी मील करना है। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ओकेजन्स देयर आर सम अदर सोशल ओकेजन्स व्हेन मैनी पीपल ईट टुगेदर irrespective of their religion, gender and caste etc. These are called community meal. बेटा स्पेसिफिक ओकेज़न जो होते हैं, जैसे वेडिंग्स हो गई, कोई सेलिब्रेशन होगी, उसके अलावा कुछ सोशल ओकेज़न्स भी होते हैं जब बहुत सारे लोग मिलके खाना खाते हैं और उन खाना खाने वाले लोगों में से किसी के धर्म का, किसी के जेंडर की, वो लड़की है या लड़का है, धर्म सिख है, मुस्लिम, हिंदू, या किसी कास्ट से बिलोंग करता है, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो जब सभी धर्म के लोग, सभी जेंडर के लोग, सभी कास्ट के लोग मिलके खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिटी मील। दिस इज कॉल्ड, हियर यू हैव टू राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड community meal. Apart from specific occasion, there are some other occasions when many people eat together irrespective of their religion, gender and caste etc. This is called community meal. So this is your chapter number 6, community eating. So do this work on your notebooks and do book work on your books and also revise this chapter. Thank you and have a nice day.